Welcome back, friends. So now we will be studying our next topic, which is valuation of real estate. So as far as the value is concerned, we will be discussing before starting with our topic, that is what is value or what are different types of values. We will be discussing the difference between cost, price, and value. As a valuer, you must differentiate between these three terms. So what is cost, what is price, and what is value? These are the most important things which as a valuer you must understand. So what is cost? सर कास्ट जब किसी चीज की कोई प्राइसिंग होती है बनाने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आती है उसे कास्ट बोलेंगे. Sir, cost is the price plus profit. Cost is amount required to produce some goods. Cost is the price plus profit. It is something like a estimation, sir. Estimation to do to make something. So basically, Actual. Basically, what is cost? Cost is what you pay for buying certain thing, and price is what you expend. Pay is what you pay. Price is what you pay for getting certain thing. Cost is what you expend. कि अगर आपने घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपने लैंड पे कितना खर्चा किया, बिल्डिंग बनाने पे कितना खर्चा किया, कितनी कॉस्ट आई. If in the case of a product, let us suppose you have to we consider the production of a certain thing. So for producing a certain thing, what the industrialist have to do? He have to buy certain raw material, then you have to get it produced by labor, then he have to pay electricity bill, then he have to pay the taxes, and then he sell it. Then what is the cost incurred on all these things for producing and selling that thing? That comes under the heading of cost. And what the buyer pays for that thing, that is price of that property, where that asset. Then value. So price is the amount of money paid by the buyer to the seller in exchange for any product and service. Or as in the case, if someone comes to you for doing some valuation, you provided the service in the form of valuation, and that person pays you for that service. For any goods or service, the money paid, that is called price to the buyer. Let us suppose if you buy a product of 250, then it is the price of that product. So cost is the amount incurred on the inputs like land, labor, capital, enterprise, etc. for producing a product. For example, if a company manufactures shoes, then the expense occurred on raw materials, salaries, rent, interest, taxes, duties, etc. determine the cost of the product. Of course, profit is added to it. Cost plus profit, that is cost. Okay, then that value. What is value? Value is usefulness of any product to a customer. So difference between price and value is, price is what he pays, cost is what he spends, and value is what is the usefulness of that product for a particular person. आपने एक जिम ज्वाइन किया,
जिम के लिए आपने 3,000 रुपया एक महीने के दे दी, तो अब वहां से आपको क्या मिला? तो दैट इज यूजफुलनेस, उसकी आपको यूजफुलनेस मिला जो आपने 3,000 रुपया पे। सो इट इज यूजफुलनेस। तो प्राइस प्राइस किसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है? प्राइस, पहली चीज तो प्राइस इज द अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस। Cost is the amount incurred in producing and maintaining something. And then value is the utility of a goods or service. Ascertainment price, you have it is ascertained from consumer's perspective. Cost is ascertained from producer's perspective. See here the difference. Though these two things seems to be similar, but there is much difference in them. It is from consumer's perspective, it is from producer's perspective, and this is from user's perspective. Value is ascertained from user's perspective. अगर एक बिल्डिंग है, तो अगर उस बिल्डिंग की आप वैल्यूएशन कर रहे हो बैंक के लिए, अब यूजर कहाँ कौन हो गया यहाँ पे? बैंक हो गया। तो अगर आपने उसकी वैल्यूएशन करनी है तो सारी चीजें आप, मार्केटेबिलिटी उसकी, उसका एनवायरमेंटल का इफेक्ट, वो सारी चीजें काउंट करें। अगर वही आप उसके लिए वैसी पर्पस के लिए कर रहे हो, तो अब वो नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हो आप ऑनर का। तो दोनों में फर्क हो गया। अब यूजर फर्क हो गया। यूजर कौन हो गया? अब जो ऑनर है वो यूजर हो गया। बैंक ने उसको यूज करके उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके उसके ऊपर लोन देना, तो आप थोड़ा सेफ रखोगे कि कल को अगर सेल करनी पड़े तो जितने अमाउंट में देना उस पर सेल हो जाए। लेकिन अगर ऑनर वो एम्बेसी पर्पज के लिए, वहां पे उसका कोई ऐसा पर्पज नहीं है कि उसने सेल करना है, तो वहां पर आप उसकी प्रेजेंट वर्थ दे सकते हो। अब यूजर फर्क पड़ गया। यूजर फर्क पड़ने से वैल्यू भी चेंज होगी। प्रॉपर्टी वही है, एसेट वही है, लेकिन यूजर चेंज होगा। इसी तरीके से एस्टिमेशन थ्रू पॉलिसी, जो प्राइस है उसकी रेट, रिटेलर की या होलसेलर की पॉलिसी होगी कि उस प्राइस में मैंने सेल करना है, इतना प्रॉफिट लेना है। दैट इज थ्रू पॉलिसी। एंड कॉस्ट इज थ्रू फैक्ट। तो फैक्ट है इतने का मेरा खर्चा आया ही है, मैं इसके ऊपर कुछ लूंगा। दिस इज द अमाउंट आई हैव एक्सपेंड ऑन इट एंड आई नीड सो मच प्रॉफिट, सो इट इज फैक्ट। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड सी हेयर valuation, it is estimated through opinion. So there should not be much difference, but there will be definitely some difference in opinion. Ramachandra ji, they, might have given certain value, and then I might have given certain other value, but there should not be much difference, more than 10 or 20%. So it is through opinion. Each and everyone has his own opinion. And then impact of variation in the market. So valuer will use whether he uses fact or opinion, sir. हाँ जी, Valuer, when he does the valuation, whether he uses the policy, fact or opinion. sir, it is opinion.
It is his opinion. opinion. But the fact His and the opinion. policy he will not consider. No, sir. This is the difference. When you are doing valuation, it is an estimation and it is an opinion. अगर ये फैक्ट होगा, अगर ये पॉलिसी होगी तो वो चेंज नहीं होगी। कैलकुलेशन मेरी भी और आपकी भी सेम आनी चाहिए। Okay. अब मेरा ओपिनियन है कि मेरी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की 10 लाख आ गई, आपका ओपिनियन है वो वैल्यू 9 लाख आ गई, रामचंद्रा जी ने वो ओपिनियन दिया 11 लाख आ गई। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही होगा। अगर सेम आ रही है इसका मतलब हम दोनों ने मिलके कैलकुलेट किया। हमारा दोनों का ओपिनियन सेम नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। ओके। तो कई बार बैंक्स वाले अगर आप लिख के दोगे इन माई ओपिनियन, तो बैंक वाले कैसा कहेंगे आपको कि ओपिनियन नहीं ये फैक्ट है, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा भाई ये ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। Okay. Okay. कई बार बैंक वाले आपको कह सकते हैं। But in our report, we have to justify our opinion through some calculation and all those things, correct? जी जी जी, बट योर ओपिनियन शुड बी बेस्ड अपॉन सर्टेन फैक्ट्स, दैट इज द थिंग। Okay. Okay, though it is not a fact, value itself is not fact, but your opinion is based upon certain facts. That is the difference. आपका जो ओपिनियन है वो किसी फैक्ट पे बेस होगा। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की लैंड की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो अगर आपकी लैंड की वैल्यू मार्केट में आपने पता किया 1,10,000 पे पर यूनिट है, तो एक फैक्ट है, वो मार्केट का फैक्ट था। अगर ये तो नहीं है कि आप अपनी तरफ से लिख दोगे, आपका दिल में आ गया मेरा ओपिनियन 2 लाख है तो मैं 2 लाख लिख रहा हूँ। आपका जो ओपिनियन है वो भी किसी फर्टन फैक्ट्स के ऊपर बेस होगा। लेकिन आपने जो दे दिया, आपने पता किया मार्केट में 1,10,000 था, आपने 1,10,000 लगा लिया, मैंने पता किया वो वहां से पता लगा कि 1 लाख था, मैंने वो वैल्यू 1 लाख ले ली। That is not correct, correct. Then valuer का importance ही नहीं रहेगा. हाँ जी, आपने If, जो if, ओपिनियन दे दिया है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। yeah. तो उसके लिए आपको डाटा रखना पड़ेगा आपके पास कि किस किन फैक्ट के बेस पे आपने कहाँ से क्या चीज पता की है, कहाँ से डाटा कलेक्ट किया है और कितना डाटा वो रिलायबल था। ठीक है ना। ठीक है सर. देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, प्राइसेस चेंजेस होते रहते हैं। कॉस्ट ऑफ इनपुट राइज और फॉल, कॉस्ट के जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेबर के प्राइसेस भी, बिजली के जो कोई भी टैक्सेस भी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जो यूटिलिटी है, बेसिकली जो वैल्यू है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में लिखते तो हैं। बेसिकली वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए है कि कितनी यूजफुल है। It is a subjective analysis, you can say. जी जी सर, सो वैल्यू मीन्स बेसिकली जी, अगर आपके घर के साथ एक छोटा सा मकान है जो सेल हो रहा है, तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। आप कह रहे हैं कि ये मार्केट प्राइस चाहे 5 लाख है, मैं 6 लाख 7 लाख देने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरत है, आपकी यूजफुलनेस है आपके लिए। अब कोई दूसरा बाहर से आके वो 5 लाख की बजाय 4 लाख भी देगा कि मेरे को तो इतनी जरूरत नहीं है। तो उसके हिसाब से वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वो डिफरेंट इशू है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, वो बैंक के लिए कर रहे हो तो अलग हो गया ना यूजर्स परस्पेक्टिव। अदरवाइज अगर यूजफुलनेस देखोगे तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है। तो मनी की टर्म में आप जो है प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये यूजफुलनेस है, अगर आप मेरे के लिए, मेरे पास एक इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मेरे परदादा जी ने दे दी थी, फिर दादाजी के पास आए, मैं सारी उम्र यहाँ रहा हूँ, अब वो मकान मेरे लिए इंसेस्ट्रल जो है, मेरी बहुत सी यादें उसके साथ जुड़ी हुई है।
तो मैं किसी भी प्राइस पे उसको बेचना नहीं चाहूंगा, मान लो। तो ये चीज है, ये उसको आप मनी की टर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। लेकिन क्योंकि आपने एक वैल्यू देनी है, उसको कुछ ना कुछ टर्म तो देनी ही है ना, तो उसको बेसिकली इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड in terms of money. However, from a quantitative perspective, it can be calculated in terms of, otherwise usefulness को आप you cannot convert in terms of. This is the difference between price, cost, and value. I think it is clear to all of you. Any doubt about it? Okay. Yes. So am I audible? Yes, sir. Due to some internet problem, it was disconnected. Sorry. So now I think it is more than enough for cost price. So अगर हम if we consider it from land and building perspective, so what is cost, price, and value from real estate project aspect? Cost is past history, whereas value embraces future. तो कॉस्ट जो है वो आज की डेट में है, तो जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो जब प्रॉपर्टी साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद सेल होगी, तब क्या सिचुएशन होगी वो आपने देखी। तो इट इज वैल्यू एम्ब्रेसिस फ्यूचर। So basically, value is the present worth of future enjoyment of the property. This thing you must understand. The future में यूज कब होनी है प्रॉपर्टी की वैल्यू? Present worth of future enjoyment of the property, that is value. See here the difference. Whereas price is the amount agreed upon by both buyer and the seller for a goods or service and subsequently paid. So value is what a person is prepared to pay for possessing the property. So the cost thus is not a value. But cost, a small variation of same, may provide a means to determine the value of the property. For example, replacement cost concept gives most commonly method of determining the value of owner occupied. तो बेसिकली कॉस्ट और वैल्यू में डिफरेंस है, लेकिन कॉस्ट में थोड़ी बहुत वेरिएशन करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम उसका क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना है तो। जैसे जनरली हम क्या करते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग में
what do? You calculate the value of the land, you calculate the depreciated cost of the building, you add up both of them, and that gives you the value of the property. Just as in layman's. There are many other things involved in it, marketability and other factors you have to consider. Otherwise, कॉस्ट जो है वो वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन कॉस्ट में कुछ वेरिएशंस करके हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. Then these are we will now will be discuss certain things, certain types of values. तो जैसे हमने दो तीन वैल्यू से पहले डिस्कस कर ली, इन्वायरमेंटल इश्यूज में इम्पेयर्ड वैल्यू थी, अनइम्पेयर्ड वैल्यू थी, ऐसे बहुत सी और वैल्यूज है. उसका वैल्यूज के मीनिंग से डिफरेंस हो जाता है वैल्यूज. तो सभी टाइप की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होती. तो फर्स्ट टाइप इज थ्योरेटिकल वैल्यू. Theoretical value is mathematical value of the property. So as in the case of land and building, you calculate the value of the land, you calculate the value of the depreciated value of the building, you add both of them, that will give you theoretical value. You don't consider many other factors, marketability or any other factors. That is theoretical value. Clear? Then economic value is a measure of benefit that an economic actor can gain from property and generally measured in terms of currency. That is called economic value. Then social and cultural value. So socially factors. So basically what happens, okay, pupils of same caste, creed, and religion. So it is off the record. They tend to live together. Tend to live together. अगर एक पोश एरिया है तो उसमें आपको पता है कि हायर इनकम ग्रुप वाले लोग ही रहे. अगर एक स्लम एरिया है तो उसमें एक लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग ही रहे. मिडल एरिया में मिडल इनकम ग्रुप वाले रहे. जो जहाँ एक कोई, दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, एक कोई मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, वो इकट्ठे रहना चाहें. अब उस वहां पे कोई दूसरी रिलीजन का आदमी रहना नहीं चाहेगा, उसके लिए वैल्यू कम होगी या नहीं, ना के बराबर. दिस इज जस्ट ऑफ द रिकॉर्ड, बट दिस इज फैक्ट इन अवर country. So socially and culturally linked persons try to live together. So it will depend upon how they are connected. So that value will be called social and cultural value. Then investment value, this is the value at which an investor will invest in a property. Of course, his aim will be to achieve maximum profit in a minimum possible time. So certain things will be involved, certain risks will be involved here. He may not be achieved his target of profit. So this is investment value. Actual value or actual cash value or cash value. So whenever a property is sold, this is the term used in insurance industry to describe the amount of compensation insured when would recover in the event of a loss. So that is called actual value. तो इंश्योरेंस के केस में जो वैल्यू निकाली जाती है, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इज इंश्योर्ड वुड रिकवर इन टर्म्स ऑफ द लॉस.
तो इंश्योरेंस के लिए जो आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू, दैट विल बी कॉल्ड एक्चुअल कैश वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू और कैश वैल्यू। जो हम कैलकुलेट करेंगे इंश्योरेंस के लिए, वहां जाके हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। एज ऑफ नाउ you must understand that for insurance you have to calculate a actual value or actual cash value or cash value. Then the most important term, market value, which is very important, and as a valuer you must remember it by heart. What is market value? So market value, different standards have given, but in their end result is same. Indians International Society of Appraisers, it says that it is the most probable price that a buyer will have to pay and the seller is most likely to receive from an item of property within the market defined at a particular point in time. कि वो प्राइस जो एक प्रोबेबल प्राइस जो बायर्स को मिलेगा, या जिस प्राइस पे, जिस कॉस्ट पे सेलर खरीदना चाहे at a particular point of time. So time is very important. At a particular point of time within the market defined area, that is market value. This is as per International Society of Appraisals. But the most important definition, which is mostly used in all countries over the world and in India also, that is as per International Valuation Standard IVSC 2007. Yeah, sir, can I take a few minutes? Yes, yes. So friends, this is the most important definition you should understand as a valuer. This is the only precise definition of market value which is available worldwide. Each and every word can be a MCQ, and you will certainly get 2 or 3 MCQ in between these 3 lines. What is the market value? Market value is the estimated amount. You must concentrate on estimated amount for which an asset should exchange, for which an asset should exchange on the on the date of valuation, between whom? A willing buyer and willing seller. Willing, you should concentrate on the word willing buyer and willing seller in an arm's length transaction. Arm's length transaction. It is not a arm's length transaction just like Corona. We should be एक social distancing के लिए arm length transaction होना चाहिए. No. What is mean by arm length transaction? Rajendra sir will tell you in detail. When after proper marketing, where in the parties had each acted knowledgeably, prudently and without any compulsion. अगर आपको रात को 2 बजे भी कोई उठाकर पूछता है एज अ वैल्यूअर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू, आपको वर्ड टू वर्ड एज इट इज ही याद होना चाहिए. मार्केट वैल्यू इज द एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर विच एन asset should exchange on the date of valuation between a willing buyer and willing seller in an arm's length transaction after proper marketing, where in the parties had acted knowledgeably, prudently and without any compulsion. Okay, any problem in this? We will explain, Rajendra sir will explain in detail. But अगर आपको इसमें कोई problem आती है, कोई word समझने में, तो अभी आप पूछ सकते हैं. Because it is the only definition available, precise definition available IVSC International Valuation Standard Council. और ये आपको आनी ही चाहिए, और इसके ऊपर आपको 2 या 3 क्वेश्चन इन्हीं 3 लाइनों में से पूछे जाएंगे. कंटिन्यूअसली ऐसा पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू. यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर.
whenever you will be doing valuation, what you will be doing? First, you will assume a dummy buyer and a dummy seller. एक assume करोगे एक buyer है, एक seller. कह रहे हैं, पहले वहां से दूध लाना जाके, कल कम दिया था डिब्बा आज भरा लेना, है ना। पहले वहां से लाओ जाके दूध और फिर उसके बाद जो है। शुक्ला जी अभी डेयरी बंद हो गई है, बंद कर दीजिए डेयरी को। सॉरी सर। Okay, see here. First, you have to assume a dummy buyer and a dummy seller. आप एक assume करोगे एक buyer है, एक seller. अब एक buyers और seller की क्या condition होनी चाहिए? अब this buyer should be ready to sell his property. कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि मैंने ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, मेरे को पैसे आज ही चाहिए, मेरे को जरूरत है पैसे की, मैं अभी बेचना हूं, आज की डेट में 15 दिन में 10 दिन में बेचना, ऐसा नहीं। ही शुड बी विलिंग, अपनी तरफ से उसकी इच्छा होनी चाहिए सेल करनी। तो बायर शुड बी ए विलिंग बायर कि मैंने खरीदनी है, और सेलर शुड बी ए विलिंग सेलर, दोनों विलिंग होने चाहिए। खरीदने वाला भी विलिंग होना चाहिए कि मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आज ही चाहिए। और सेलर के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मैंने आज ही बाय करना है या सेल करना है सर, या हफ्ते में 10 दिन। तो पहली चीज है कि दो बोथ ऑफ देम शुड बी विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर। सेकंड थिंग, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेशन बिटवीन देम, कि वो दोनों आपस में कोई उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए। बोथ ऑफ देम शुड नॉट बी ए क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव, और फादर इज सेलिंग हिज प्रॉपर्टी टू ए सन, और a brother is selling his property to his brother. So this is arm's length transaction. मीन्स के दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्लोज रिलेशन नहीं होना चाहिए इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। ये बात समझ आ गई। दूसरा है कि बायर ने एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी, वो उसने बाजार में घूम के देखा, मार्केट में घूम के देखा, he made number of inquiries from the market at which price such properties are being sold. तो उसको मार्केट की पता है कि मार्केट में आजकल कितना प्राइस कर रहा है प्रॉपर्टी। ठीक है ना, बायर ने भी घूम के देखा किस प्राइस पे प्रॉपर्टी सेल हो रही है, और सेलर ने भी देखा घूम के कि किस प्राइस पे प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो रही है। दोनों को मार्केट की नॉलेज है। Both of them has the knowledge at which the properties are being sold. ऐसा नहीं है कि सेलर जो है वो फॉरेन कंट्री चला गया, 20-25 साल बाद आया, उसको मार्केट का पता नहीं है, जहाँ किसी ने बायर ने उसको फोन किया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है आपने 1 लाख की खरीदी थी, आप 3 लाख में मिल बेच लूं मैं, या खरीद लूंगा, मेरे को दे दोगे। तो उसको पता नहीं कि इधर मार्केट जो है 3 की बजाय 30 लाख की है। तो दोनों को नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की कि मार्केट में किस प्राइस पे प्रॉपर्टी सेल हो रही। ठीक है, बोथ ऑफ देम हैव नॉलेज ऑफ द मार्केट, दीज आर द थिंग्स। अब जिस डेट पे आप वैल्यूएशन कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ वैल्यूएशन। अब उस पे और कौन कौन सी चीजें देखने हैं, आने वाली जो टर्म्स है वो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लेकिन इसमें जो टर्म्स है कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस क्या है, नॉलेज ऑफ द मार्केट क्या है, विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर क्या है, वो आपको समझ होनी चाहिए। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो इसमें पूछ। ठीक है ना, No, दिस इज clear, clear.
सो विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर, ये बात समझ आ गई। उसके बाद समझ आ गया आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। उसके बाद प्रॉपर मार्केटिंग एंड वेयर इन पार्टीज हैज एक्टेड नॉलेजेबली, प्रूडेंटली एंड विदाउट कंपल्शन। अब दोनों के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि मैंने आज ही प्रॉपर्टी खरीदनी है। जहाँ सेलर के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि आपने 10 दिन में 15 दिन में बेच के मैं उस पैसे को कहीं और यूज करना हूँ, मेरे को घर पे जरूरत है किसी पर्सनल यूज के लिए। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ द वैल्यूएशन विल बी डन। तो पहले एक आप बायर, डमी बायर अज्यूम करोगे, एक डमी सेलर यूज करोगे। अब दोनों के बीच देखोगे आप किस तरीके से कि ये जो बायर है वो भी कोशिश करेगा कि मैं कम से कम पे करूं। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आदमी, अगर आपको एक जरूरत के लिए आपको एक कार चाहिए, तो मार्केट में आपको एक कार, उस वही कार आपको 1.5 लाख की मिल रही है, तो दूसरा जो पर्सन है वो 2 लाख के लिए, 2 लाख में ऐसी ही कार दे रहा है, तो आप कभी भी 2 लाख वाली चीज नहीं खरीदोगे। आपके लिए जो जरूरत थी 1.5 लाख में अगर मिल रहा है, तो आप यू विल नॉट बी रेडी टू पे हायर प्राइस अपनी यूजफुलनेस के हिसाब से। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू। अब आगे आगे बहुत ही और सारी डेफिनेशन आएगी, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये चीज आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव, बिकॉज इन केस इन मोस्ट ऑफ द टाइम, एट मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? मीन्स एज ए वैल्यूअर हैज टू एस्टिमेट द अमाउंट। अब क्या है कि यू हैव टू estimate the amount, not exit. We should assume hypothetical buyer and hypothetical seller. Means what is the condition? Both of them are willing to transact. Both buyers and sellers are knowledgeable. Market is an open market. ये अभी डिस्कस करेंगे open market क्या है. Then at arm's length transaction and transaction between related buyer and related sellers between close friends should not be considered. क्लियर है मार्केट वैल्यू? कोई डाउट है तो पूछो। Then liquidation value. So what is liquidation value? This is the type of market which depends upon reason for liquidation, such as distribution, division, sale, conversion to cash, personal property, business assets, or inventory by settlement, agreement, or legal process. तो जब कहीं ऐसा कोई अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, तो उसकी ऑप्शन की जाती है, तो वहां पे एज ए वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट लिक्विडेशन। ये कोई जरूरी नहीं है कि उस केस में, और भी बहुत से केसेस हो सकते हैं, जैसे किसी दो पार्टीज के बीच डिवीजन हो रही है, जहां सेल हो रही है, फोर्स सेल हो रही है, या कन्वर्शन टू कैश ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी के, मेरे को आज ही मैंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके मेरे को आज ही जरूरत है पैसे की, कन्वर्शन ऑफ प्रॉपर्टी टू कैश। सो दैट टाइप ऑफ, सो इट विल डिपेंड कि किस पर्पज के लिए। लिक्विडेशन वैल्यू के लिए भी आगे पर्पज हो जाएगा अलग। तो जनरली एज ए वैल्यू यू आर कंसर्न विद कि आपने जो लीगल प्रोसेस के लिए जब करते हैं, लेकिन अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी कि ये लीगल पर्पज के लिए ही हो, और से बहुत से पर्पज भी हो सकते हैं, ये आपको याद रखना। स्पेशली फॉर कन्वर्शन, सेल और कन्वर्शन टू कैश, ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। पर्सनल प्रॉपर्टी, बिजनेस एसेट और इन्वेंटरी बाय सेटलमेंट एग्रीमेंट और सो दी। एक चीज इसमें है जो दो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको कई बार क्वेश्चन जो है वो आईबीपी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। दैट इज, इट मे बी ऑर्डरली लिक्विडेशन वैल्यू एंड फोर्स्ड लिक्विडेशन वैल्यू। Ordinary, in case of orderly liquidation value,
if a period of few months is available, कि 2 महीना 2 महीने 3 महीने का समय है आपके पास, तो फिर जो वैल्यू होगी दैट इज ऑर्डरली लिक्विडेशन वैल्यू। एंड इफ इट इज टू बी सोल्ड विद इन 30 days, in less than 30 days, this is called forced sale values. So you may get one más question, the difference between orderly liquidation value and forced liquidation value. So next is realizable value. कई बार आपको बैंक्स के लिए जब आप वैल्यूएशन करते हो तो रियलाइजेबल वैल्यू भी देनी पड़ती है। तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि जो नेट सारे खर्चे निकालने के बाद जो नेट ऑनर को मिलेगा दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू। ऑनर ने कोई अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दी थी सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, उसका खर्चा निकालना है। कोई कमीशन पे की है उसने रियल एस्टेट एजेंट को, कोई फोटोग्राफी की है, कुछ भी किया, कोई भी खर्चा दैट वाज एनी एक्सपेंडिचर दैट वाज एसोसिएटेड विद दैट सेल ऑफ दैट एसेट, दैट इज कॉल्ड, उसमें से जो उसको पैसा मिला उसके साथ जो एसोसिएटेड थे एक्सपेंडिचर उसको माइनस कर दिया, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल। अब दो चीज, दोनों में डिफरेंस है, रियलाइजेबल वैल्यू में और नेट वैल्यू। अब दूसरी चीज है, दूसरी जो टर्म है दैट इज नेट वैल्यू, वो हम डिस्कस दोनों में करते हैं। कि आपने यू सेल दिस प्रॉपर्टी फॉर 30 lakh and you pay 50,000 to the agent, then realizable value will be 29.5 lakh. That is realizable value. Then what is net value? See here the difference. The value of the property as on date, let us suppose on 4th August 2024, it is 50 lakh. But this property has already been mortgaged with the bank and bank has given a loan of 30 lakh. As on date, a loan of 30 lakh is outstanding against the property. So what is the net value of the property? That is 20 lakh. तो रियलाइजेबल वैल्यू को नेट वैल्यू से कंफ्यूज नहीं करना। कोई भी इसके ऊपर लेन है, डेट है, वो माइनस होगा वैल्यू में से, जो मार्केट वैल्यू या जो भी वैल्यू आपने निकाली है, तो दैट इज नेट वैल्यू। क्लियर है? तो जनरली इन केस ऑफ डिवोर्स सेटलमेंट्स दिस वैल्यू इज गिवन, और मे बी you may have to calculate the net value of the property. तो realizable value को net value से confuse नहीं करना। Sir, I have one question. जी जी। Sir, if 50,000 is a advertisement and commission, It may be 50,000 is advertisement and it may have given commission. He may have certain. This is just an example. He has. so what is the net value then? हाँ जी। What is the net value then? So this is not net value. This is realizable value 29 lakh. No, sir, in the case Net of value. So Yes, net sir. value is not there in such cases when you are doing valuation. when we are doing valuation value of 50 is- lakhs. कि Of 50 उस अमाउंट के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पहले कोई लोन तो नहीं चल रहा। 50 लाख की प्रॉपर्टी थी,
30 लाख का लोन पहले ही चल रहा है, जी सर। तो अब नेट वैल्यू कितनी होगी उसकी? 20 lakhs देन। वो 20 लाख हो गई। तो सर तो 50 lakhs वो की। जो रियलाइजेबल है वो वहां वो अलग चीज है, उसका इससे लेना देना नहीं है। नहीं नहीं अगर आप सर, देख, हाँ जी, 50 lakhs का जो हाउस है उसमें हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया, उसके बाद उसको हमने सेल किया, जी तो उसके रिगार्डिंग नेट वैल्यू क्या होगी? सर, वो वहां पे नेट वैल्यू नहीं आएगी। ओके ओके। वो नेट वैल्यू उसका एडवर्टाइजमेंट से, कमीशन से कुछ लेना देना नहीं। नेट वैल्यू कहाँ से आएगी? कोई आउटस्टैंडिंग लोन है पहले ही, ओके ओके। वो चीज लेनी है जहाँ पे। यही इस वही कह रहा है कि इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना सर। क्लियर है? वो अलग चीज है, यस सर, रियलाइजेबल क्लियर है। वैल्यू है, वो अलग है। तो जनरली हम क्या करते हैं, बैंक्स वाले क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक वाले, पीएनबी वाले कहेंगे कि मार्केट वैल्यू अगर 30 आई है तो नेट वैल्यू आप 85% लो, 25.5 लाख के करीब। वो आप रियलाइजेबल वैल्यू लो, वो 15% लेस कर देते हैं। वैसे 15% खर्चा नहीं होता, लेकिन वो 15% का कम लेते हैं रियलाइजेबल। उनका अपना कैलकुलेट करने का तरीका, बेसिकली रियलाइजेबल वैल्यू में कोई परसेंटेज का लेना देना नहीं होता। Sir, then when we buy a रियलाइजेबल new वैल्यू, जी flat, जी सर, जी सर, जी sorry, सर, sorry to interrupt you. जी जी सर। When we are buying new flat, then also banks will not give 100% finance, they will use 80% finance. Why so? Because of this one only, net value only? सर बैंक्स क्या करेगा? No, when I buy the मैं new, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ कि they बैंक don't ने, give आपने 100% एक finance. प्रॉपर्टी आपने एक प्रॉपर्टी की वैल्यू की, वो हाँ 50 लाख रुपये वैल्यू आ गई। हाँ और बैंक जो है अपने आप को सेव करेगा, बैंक को पता है कि आज जो मैंने प्रॉपर्टी, उनके लिए आज कुछ नहीं है आपकी वैल्यू, उन्होंने एक कागज लिया अपने लॉकर में रख दिया। अब yeah. 3-4 साल बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो एनपी हो, अब क्या होगा? वो इस प्रॉपर्टी को Okay. सेल करेंगे, ऑक्शन करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वो वैल्यू जो आपने फेयर मार्केट वैल्यू निकाली थी 50 लाख, अब वो क्या निकालेंगे, वो फेयर मार्केट वैल्यू के साथ साथ लिक्विडेशन वैल्यू निकालेंगे, होल्ड सेल वैल्यू निकालेंगे। उनको पता है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी, अगर वो अकाउंट एनपी हो गया तो 50 लाख में सेल नहीं होगी। Okay, okay. ठीक है ना, पहली बात। तो दूसरी बात है कि जरूरी नहीं है कि हर बार एप्रिसिएशन ही हो प्रॉपर्टी में। जनरली तो होता है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी वो 70 लाख की हो जाती है 3 साल बाद, 50 की जो 55 की तो होगी, जनरल जो ट्रेंड है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी वजह से उस एरिया में कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लग गया, कोई ऐसी चीज बन गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो क्या होगा, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 50 लाख थी तो वो गिर जाएगी, नीचे भी आ सकती है। तो वो क्या करते हैं कि पहले तो 85% जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू का 85% रिलायजेबल वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 85% का वो 65% लोन देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो 50 लाख की वैल्यू है वो 25 लाख तक का लोन देंगे उसमें, टू बी ऑन द सेफर साइड। अबाउट 50% हो जाता है 85% का, 65%। कुछ बैंक सीधा ही Okay. 50% कर देते हैं, कुछ बैंक 85% करके 65%। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, कल को कुछ भी हो जाए, 50 वाली 25 में तो सेल होगी। Hmm. तो अपने आप को सेव करने के लिए वो इस तरीके से करते हैं। तो It is इसका जो है okay. Okay. उल्टा असर भी होता है।
उनको पता है कि 50 लाख की है प्रॉपर्टी, वो वैल्यू को कहेंगे कि आप ऐसा करो, इसको 65 लाख कर दो कल, क्योंकि हमने तो 50% ही लोन देना है, तो अगर कल को देखेंगे तो 32-33 लाख की तो हो ही जाएगी। तो जनरली इस चीज को मिस यूटिलाइज भी किया जा रहा है, मिस यूज भी किया जा रहा है। Sir, to supplement Dr. Rajendra sir, जी सर। RBI also insists on margin, sir. I think banks have no option. 30 lakhs तक 10% मार्जिन रखना ही है, और वो 30 to 75 lakhs में 20%, उसके ऊपर 25%. हाँ So, वो तो है ही है सर, वो वही वही बता रहा हूँ ना। इसलिए वो 50% आ रहे हैं सर, फाइनली सब कैलकुलेशन हाँ करने के बाद बोरोअर को 50% आएगा, बिकॉज बैंकर्स का भी ऑप्शन नहीं रहेगा सर उसमें. हाँ सर, जी सर। जो आपने जो बताया वही. Sir, if suppose if they are given 25 lakh rupees loan and it become a NPA after 3-5 years, the appreciation happened up to 50 lakhs or 60 lakh rupees. Then what bank will do, sir? Then they take their own money first and the remaining money they will give back to the owner, or they will not give. सर वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट एज ऑन डेट। आप अभी ये हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पहले डिस्कस कर लें, वो सारी चीजें बाद में करेंगे। Okay. ठीक है ना, अभी आज से समझ लो कि क्या वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू First और of नेट all, वैल्यू में क्या फर्क। we should concentrate on the subject only, the syllabus. We cannot go beyond the syllabus on this platform. Please concentrate on the syllabus so that you can be able to complete the syllabus within the permissible time limit. And also, that is not for examination purpose. What is required for examination purpose, we can take only those subjects or those topics. So next is marriage value. So let us suppose you have a plot and it is situated on a main road, and here the unit price is 50,000 per unit. Okay. In its behind another plot B, it is on a narrow lane. Here the unit price is 15,000 per unit. Mr. A purchases this plot B. So it becomes a 1 unit. A plus B. So what will happen? So even after buying it for 20,000, he will be able to sell it at a higher price than what B will be getting. 15 की बजाय अगर वो 20 भी दे देगा तो भी वो फायदे में रहेगा। दोनों प्लॉट्स को ज्वाइन करके जब सेल करेंगे, एक तो टू साइड हो गया और उसको फ्रंट में भी रोड मिल गया। ऐसे करने से जो वैल्यू इंक्रीज हो गई, दैट वैल्यू इज कॉल्ड मैरिज वैल्यू बाय कंबाइनिंग टू प्रॉपर्टी। सर कौन सा वैल्यू दोबारा बताएंगे प्लीज? दैट इज कॉल्ड मैरिज वैल्यू। मैरिज वैल्यू। इज इट क्लियर? So what is marriage value? Synergic value or marriage value. Then replacement cost and reproduction cost. There are two things. One is replacement cost and other is reproduction cost. So see here, what is the difference between
let us suppose you have a building A. It was constructed in 1998. एंड आज की डेट में अगर आपने इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने का क्या मतलब हो गया कि 1990 में सपोज कर लो, उस समय मार्बल फ्लोरिंग चल रही थी, आजकल आपने इसको रिप्लेस किया, आजकल विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग चल रही है, आजकल डिजाइन चेंज हो गया है। पहले अलग डिजाइन चलते थे, आजकल फ्रंट के डिजाइन भी चेंज हो गए। आज की डेट में अगर इसको रिप्लेस करना है लेकिन उसकी यूटिलिटी सेम रहे, बिल्डिंग की यूटिलिटी सेम रहे, बेसिकली मान लो कि इसमें ये जो दीवार थी, ये वाली दीवार थी, ये वाली दीवार थी, दोनों तरफ से प्लास्टर की गई, एक्सटीरियर और इंटीरियर, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से प्लास्टर। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे आपने प्लास्टर नहीं किया वॉल, एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन ये वॉल जो है, ये वॉल लोड बेरिंग थी, दिस वॉल वाज लोड बेरिंग। अब इस केस में भी ये वॉल जो है लोड बेरिंग है, जो काम ये वॉल कर रही थी वही वॉल ये काम कर रही है, यूटिलिटी सेम रहे, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। रिप्लेस कर दिया, यूटिलिटी सेम रही, किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर आपने मान लो कि 1998 में एक बिल्डिंग बनाई थी, उसमें आपने जो था मार्बल फ्लोरिंग लगाया था, जो जो चीज वहां पे लगाई थी वही चीज आज लगाओ, उसी को रिप्रोड्यूस करो, सेम मटेरियल। यहाँ पे मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, डिजाइन डिफरेंट हो सकता है, यूटिलिटी सेम रहनी चाहिए। इसमें एवरीथिंग शुड रिमेन सेम, डिजाइन, मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग रिप्लेस, तो उसको कहेंगे इसका एक तरह से आपने मिरर इमेज बना दिया, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। So there is difference between two terms, replace and reproduce. So generally जब भी हम, whenever we are calculating value, we generally use replacement value, not reproduction. But as a value, you must understand the difference between replacement and reproduction. Is it clear? Any doubt about it? Please, Replacement. please repeat reproduction cost value. हाँ जी, सर रिप्रोडक्शन वैल्यू को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। रिप्रोडक्शन देखिए, इसके केस में क्या था कि आज की डेट में देखो, जब जो 90s में डिजाइन थे वो आजकल नहीं चलते। ठीक है, 90s में क्या था कि मार्बल फ्लोरिंग होती थी, आजकल विट्रीफाइड फ्लोरिंग होती है। ठीक है, तो हमने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें फ्लोरिंग को चेंज कर दिया, विट्रीफाइड फ्लोरिंग, मतलब बट उसका यूज वही रहा। तो जैसे ये एक रूम था 10 बाई 15 का, इसमें मार्बल फ्लोरिंग लगा था, लेकिन क्योंकि आजकल डिजाइन ही चेंज हो गया, हमने विट्रीफाइड फ्लोरिंग लगा दी। वाह, यूज तो वही रहा ना उसका। यस। ठीक है ना, मटेरियल चेंज हो सकता है, डिजाइन चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन यूजनेस नहीं चेंज हुई। तो जो कॉस्ट होगी वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, हमने रिप्लेस कर दिया उससे। सर यूजनेस मीन्स रेसिडेंशियल कमर्शियल, दैट यूजनेस। और ये वो तो है ही, रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल ही रहा, कमर्शियल है तो कमर्शियल रहेगा। यूजफुलनेस वही रही कि 10 बाई 15 का कमरा था तो वो 10 बाई 15 का ही रहा। डिजाइन चेंज हो सकता है उसके द्रो, आजकल क्या है कि पहले आप जब रहते थे तो सैनिटरी का जो सिस्टम था अलग होता था। जी जी। आजकल जो है सैनिटरी के जो है, आपने देखा होगा कोमोड वगैरह भी चेंज हो गए। उसके ऊपर जो टैंकी थी, पहले तो एक संगल लगा होता था, तो उसको खींचना होता था, लोहे की टैंकी आती थी। Yes, sir. आजकल तो वो वॉल माउंटेड पीस आ रहा है, लेकिन यूजफुल तो वही रहा, यूजनेस तो वही रही ना उसकी। यस सर। वो अगर ऐसा ही रहा तो उसको हम बोलेंगे कि रिप्लेस कर दिया। ओके। जैसे आपने घर में भी करते हो कि हमने क्या कहा कि पहले जो हमारा
जो किचन था, किचन में हमने जो कबर्ड लगाए थे वो वो भी यूज हो रहे थे, अब खराब हो गए, हमने उनको रिप्लेस कर दिया, नए डिजाइन के कबर्ड लगा दिए। लेकिन काम तो वही कर रहे हैं ना, यस सर। ठीक है ना, वो रिप्लेस कर दिया हमने एक तरह से ओके कबर्ड्स। लेकिन अगर हम पहले भी हमारे पास जो कबर्ड थे वो उसी मटेरियल के थे, हमने अब भी वही मटेरियल, पहले भी बोर्ड के बने थे, अब भी हमने बोर्ड वालों को, अगर तो हम पीवीसी से या एल्यूमिनियम के कबर्ड बना दिए तो वो रिप्लेसमेंट हो गए। अगर पहले भी बोर्ड के थे, अब भी हमने बोर्ड के बना दिए, वही सब कुछ रखा, कोई डिजाइन नहीं चेंज किया, कुछ नहीं किया, रिप्लेस कर उसको, वुड को वुड ही रहने दिया, तो वो ओके, रिप्रोड्यूस कर दिया, गॉट इट गॉट इट। कोई डिजाइन नहीं चेंज किया। अब देखो यूज तो फिर कबर्ड तो कबर्ड की तरह ही यूज होना है, चाहे मटेरियल कोई भी लग गया हो। तो ओके ठीक है, दोनों में फर्क हो गया, ये बात ओके समझ सर, लगी। थैंक यू सर। ओके सर कैन आई टेक फ्यू मिनट्स? जी सर। क्या नॉर्मली अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नारायण जी, आपका जो क्वेश्चन है वो हम वी कैन टेक इन द जीरो आवर बट नॉट नाउ, बिकॉज फ्लो ऑफ सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग और आउट ऑफ सिलेबस हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे। अभिषेक जी, आपके क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको सर एक्सप्लेन करने के लिए। सर देखिए, अगर एक बिल्डिंग है, आप वहां पर रेसिडेंशियल है, लेट इट बी, एक फैमिली रह रही है और उसको बिल्डिंग को किसी वजह से डिसमेंटल हो गया और उसके बाद उसको बनाना पड़ा, तो हो सर सकता है आज की डेट में कॉन्ट्रैक्टर को मार्बल फ्लोरिंग महंगा पड़े और आज की डेट में विट्रीफाइड टाइल सस्ता पड़े, या फिर कोई और उसके जैसा हो, क्योंकि वहां पर फ्लोर लगा हुआ था, पक्का फ्लोर था, उसकी जगह वो सीसी फ्लोर की जगह हो सकता है सीसी फ्लोर हो पहले, तो आज सर उसको विट्रीफाइड टाइल्स उसने लगा कर दे दिया। लेकिन वो चारों लोग जो उस फैमिली के मेंबर थे, उसी घर में उसी एरिया में उतना ही एरिया उसको मिल गया, उतना ही किचन मिल गया, उतना ही उनको सैनिटरी अरेंजमेंट सारे मिल गए, टॉयलेट भी एक मिल गया, किचन भी एक मिल गया, बेडरूम भी एक मिल गया, ड्राइंग रूम भी एक मिल गया। दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। ओके अगर एक मंदिर है या गुरुद्वारा है या कोई मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है, वो बाय द वे गिरा, तो आपको सेम कार्विंग वाला सेम तरह का ही लगाना पड़ेगा। ओके ओके, लेट इट बी, एक किसी मॉन्यूमेंट की कोई वॉल डिसमेंटल हो जाती है, तो ओके ओके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, सेम उसी तरह का पत्थर लेकर आएगा जोधपुर से या कहीं से भी, जो भी मकराना से जो भी अवेलेबल है, और उसको वहां पर एज इट इज लगाना पड़ेगा, तभी वो पूरा शेप निकल पाएगा। ओके ओके, तो वहां पर कुछ भी नहीं लग सकता, कुछ और विट्रीफाइड टाइल भी नहीं लगेगी या फिर वुड भी नहीं लगेगी, कुछ और नहीं लगेगा। जैसे यस सर सर ने बताया, अगर आपका वुडन कबोर्ड है, आप वुडन कबोर्ड से रिप्लेस करेंगे, सेम चीज, वुड भी सेम होना चाहिए, डिजाइन भी सेम होना चाहिए, और मटेरियल भी सेम होना चाहिए, कलर भी सेम होना चाहिए, दैट विल टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन। ओके ओके करेक्ट सर, गॉट इट। अगर अगर उसमें यूज तो अलमारी हो रही है, आपको दो की जगह तीन खाने मिल गए, तब भी रिप्लेसमेंट में क्या, अलमारी ही है, अलमारी की जगह अलमारी मिल गई, वेदर स्टील की है या वुड की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका तो काम चल रहा है ना सर। यस सर अगर आपको चाहिए, नहीं सर मेरा तो वही चाहिए, मुझे तो 100% वही चाहिए अलमीरा, जिसमें येलो कलर का पेंट लगा था, दो खाने बने हुए थे, इतना मोटा स्लैब था, ऐसा हैंडल था रेड कलर का, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आई थिंक यस आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू क्लियरली। यस गॉट इट। यस सर, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। Salvage value, next is salvage value and scrap value. So let us suppose you have a vehicle, अब इस व्हीकल को 15 साल हो गए, 15 साल के बाद आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो क्या है कि इसका आप इंजन के अलग अलग पार्ट्स को सेल करेंगे, गियर वाला पार्ट किसी को बेच सेल कर दिया, जो आपने टायर ही कुछ 6-7 महीने पहले डलवाए थे उसको अलग सेल कर दिया, अलग अलग पार्ट को अलग अलग सेल कर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि एज इट ही इजी आप एक स्क्रैप वाले को बुलाओगे कि इसको उठा के ले जा, जो देना है मेरे को दे। तो अगर तो आप इसको डिसमेंटल करके इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग जगह सेल करोगे, अलग अलग सेल करोगे, तो हम कह लेंगे उसको स्क्रैप वैल्यू। और अगर एक ही तरह विदाउट डिसमेंटलिंग इसको सेल कर देंगे, देन वी विल कॉल इट एज साल्वेज वैल्यू।
Maybe generally scrap values may be slightly higher than the salvage value, but theoretically, when we will be using these terms in our calculation, we will assume scrap value and salvage value to be same. Is it clear what is difference between salvage value and scrap value? Clear, sir. Yes, sir. Okay, then is breakup value. या ऐसे ही जैसे स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू, अगर एक कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को आपने सेल करना है, तो उसमें दो तरीके हैं। एक तो है कि अलग अलग मशीनरी जो है वो आप सेल कर दो, कि ए मशीनरी है अलग सेल कर दी, बी अलग कर दी, सी अलग कर दी, उसके अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग सेल कर दी, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप वैल्यू। अलग अलग आइटम को अगर अलग अलग सेल करके जो टोटल वैल्यू आपको मिलेगी, जो जो अलग, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल एसेट्स की जो वैल्यू है, सेल ऑफ इंडिविजुअल एसेट if planned separately, it is termed as breakup value of the property. Clear है? So what is the difference between the salvage value and breakup value? Salvage value जो है वो तो है कि एज इट इज ही आपने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। तो ब्रेकअप वैल्यू जो है बेसिकली स्क्रैप वैल्यू जो होगी, वो अगर एक मशीन को आपने अलग अलग पार्ट्स को सेल कर दिया, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। अगर एक मशीन, एक कंपनी में अलग अलग मशीन्स को आपने अलग अलग सेल किया, तो वो ब्रेकअप वैल्यू हो गई। अगर उन सभी मशीन्स को एक साथ सेल कर दिया, वो अलग चीज होगी। ठीक है ना, समझ लगी दोनों में डिफरेंस। तो ब्रेकअप वैल्यू जो अलग अलग एसेट है, स्क्रैप जो होगा वो एक का एसेट का ही होगा, जो ब्रेकअप होगी वो अलग अलग एसेट हो वहां पे। ठीक है, डिस्ट्रेस वैल्यू आपने पहले ही पढ़ लिया, तो लिक्विडेशन वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, कि अगर आपको किसी मुसीबत में प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ जाए, कि घर में कोई पर्सन बीमार हो गया, आज ही मेरे को ये प्रॉपर्टी सेल करनी, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए या किसी और पर्पज के लिए चाहिए, तो दैट इज डिस्ट्रेस वैल्यू। होप वैल्यू, तो आज मैं प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ, मेरे को होप है कि कुछ नियर फ्यूचर में वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है उस एरिया में कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एक होप है, जिसको स्पेकुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तो स्पेकुलेशन में तो ये आ जाएगा कि एक अफवाह फैलाई गई है या एक ऐसी चीज कही है कि और से 2-3 साल के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज स्पेकुलेशन। एक होप है कि वहां पे ये चीज बननी ही है, जिससे कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू में इस पे वहां पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है जिसमें बहुत से लोगों की जरूरत होगी, तो वहां पे जब लोग आएंगे तो उनको प्रॉपर्टी भी चाहिए होगी, रहने के लिए बिल्डिंग भी चाहिए होगी, तो उसकी वजह से मेरे को होप है कि 2-3 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए। वो हो गई होप। स्पेकुलेशन है कि हो सकता है कि वहां पे लग जाए, उस एरिया में बहुत बड़ी फैक्ट्री लग जाए, दैट इज स्पेकुलेशन। दोनों में फर्क है। होप जिसमें चांसेस है कि बढ़ेंगे ही, इंडस्ट्री लगनी ही लगनी है। स्पेकुलेशन है, हो सकता है लग जाए, हो सकता है ना लगे। दोनों में फर्क है, होप एंड स्पेकुलेशन है। इज इट क्लियर? देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमने पढ़ ली। रिपोर्टेड वैल्यू क्या है? जो वैल्यू आप अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में, द वैल्यू विच यू विल बी गिविंग इन योर वैल्यूएशन रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वैल्यू। एंड rounded up, it may be rounded down or it may be rounded up। तो वैल्यू आ गई आपकी 1,10,434, तो आपने उसको राउंड करके 1,10,000 कर दिया। अगर राउंड अप करोगे तो 1,11,000 हो जाएगी। तो ये वैल्यू, दिस इज राउंडेड वैल्यू। सॉलिड वैल्यू हमने पढ़ ली क्या है, स्क्रैप वैल्यू भी पढ़ ली।
तो सेंटीमेंटल वैल्यू, दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन कि अगर उसके सेंटीमेंट उस प्रॉपर्टी के उस एसेट से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए कुछ अलग वैल्यू होगी आप दूसरे पर्सन के बजाय। That is sentimental value when a property is determined based upon sentimental ground rather than considering market price. This is for special or fancy price due to sentimental attachment to the property. Then speculative value आपको पहले बता दिया हूँ वैल्यू speculative value क्या है। Then special value, तो वही चीज हो गई जैसे ये sentimental value तो special value हो गई, सिमिलर है। This is also personal value because it is a value for an individual buyer or seller. कि जैसे मेरे घर के साथ कोई दूसरा एक और है वो सेल हो रहा है तो मेरे लिए उसकी स्पेशल वैल्यू मैं थोड़ा पैसे ज्यादा भी दे दूं इसके लिए, तो उसके लिए मेरी यूजफुलनेस ज्यादा होगी पर्सनल यूज के लिए। तो दैट इज पर्सनल फॉर मी, दैट इज स्पेशल वैल्यू। स्टेट्यूटरी वैल्यू जो गवर्नमेंट जिसके बेस पे आपने स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, दैट इज स्टैट्यूटरी वैल्यू। स्टिग्मा वैल्यू, स्टिग्मा क्या है कि जैसे हमने कहा था कि एनवायरमेंटल स्टिग्मा लग जाता है, इसलिए जरूरी नहीं कोई सोशल स्टिग्मा भी, कुछ ऐसा स्टिग्मा भी लग सकता है कि एक बिल्डिंग थी उसमें एक बायर ने पहले खरीदी, उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई, फिर दूसरे ने खरीदी उसमें भी ऐसा ही हो गया, एक उस पर फिर स्टिग्मा लग जाएगा कि भाई जो भी ये प्रॉपर्टी बाय करता है उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है एक तरह से। तो वो प्रॉपर्टी सेल करनी मुश्किल होगी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी, तो स्टिग्मा अटैच हो जाए, एक ठप्पा लगे उस प्रॉपर्टी के, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा वैल्यू। देन अकोमोडेशन वैल्यू, अकोमोडेशन वैल्यू में ये पिक्चर आप देखो, इसमें ये देखो अब ये जो प्लॉट ए है, ये प्रॉपर्टी ए है, इसको कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अगर इसने रोड पे जाना है तो डी में से पास होके जाएगा, या सी में से पास होके जाएगा, या बी में से पास होके जाएगा, या ई में से पास होके जाएगा, डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं। अब इस प्रॉपर्टी को कौन खरीद सकता है? या तो डी खरीदेगा, या सी खरीदेगा, या ई खरीदेगा, या बी खरीदेगा। बेसिकली वो अकोमोडेट करेंगे इसको। ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड लैंड लॉक्ड लैंड, लैंड लॉक प्रॉपर्टी, जिसको कोई भी डायरेक्ट एक्सेस ना हो, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लैंड लॉक। अब लैंड लॉर्ड कौन खरीदेगा? जैसे इस केस में क्या है, बी ई सी या डी अकोमोडेट कर सकते, खरीद सकते। सो सच वैल्यू इज कॉल्ड अकोमोडेशन वैल्यू। क्लियर? Then annual letting value. So annual letting value is generally used for calculating property tax. तो जनरली क्या होता है कि जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन वाले होते हैं उसमें रेजिडेंशियल या कमर्शियल की प्रॉपर्टी पे तो टैक्स होता है, लेकिन जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उनका टैक्स थोड़ा हायर होता है। वो कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम रेंट कितना आएगा, जिसके बेस पे वो प्रॉपर्टी टैक्स असेस करते हैं। तो वो जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, दैट इज कॉल्ड एनुअल लेटिंग वैल्यू फॉर लेवी ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। देन गाइडलाइन वैल्यू जो इट इज आल्सो कॉल्ड कलेक्टोरेट वैल्यू, दिस इज द वैल्यू व्हिच इज गिवन बाय द रेवेन्यू अथॉरिटीज on which stamp duty is to be paid, that is called guideline value. Insurance value, वो हमने वही कर ली कि इंश्योरेंस के केस में हम ये चीज याद रखनी है कि रियलाइजेबल जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब उसमें क्या है कि ये एज्यूम किया जाता है, जैसे आपने सुबह पढ़ा था फायर इंश्योरेंस, उसमें ये एज्यूम करते हैं कि जो सब स्ट्रक्चर पार्ट है वो फायर से अफेक्टेड नहीं होगा, ओनली सुपर स्ट्रक्चर पार्ट विल बी अफेक्टेड। तो जो सुपर स्ट्रक्चर की वैल्यू है
that is called replacement value of superstructure alone. Means land is excluded. That is insurance value. Realizable value तो हमने अभी calculate sorry discuss कर ली. Then is Sir, in that nuisance one, value. foundation also excluded, sir. हाँ जी. Foundation also excluded in there. It written सब there. स्ट्रक्चर पार्ट वही बोला है मैंने. सब स्ट्रक्चर पार्ट वो उसमें सब कुछ आ जाएगा. Okay. है ना. सुपर स्ट्रक्चर ही लेना है. सब स्ट्रक्चर में लैंड भी आ जाएगी तो फाउंडेशन भी आ जाएगी. एनीथिंग अबव रूफ रोड लेवल. और देन ये सौरोगेट वैल्यू वही है. इट इज ऑन द न्यूसेंस वैल्यू. Change in the value due to significance of a person or thing arising from their capacity to cause inconvenience or annoyance. That is nuisance value. और किसी प्रॉपर्टी के बिल्डिंग के साथ में कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिससे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, न्यूसेंस काज हो रही है, जहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिससे वहां पे फाउल स्मेल आ रही है हर समय, जिससे उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है. दैट इज न्यूसेंस वैल्यू. Then surrogate value, it is a value worked out on non-market based concept. It is based on land and building method of valuation. Some values called this value added by land and building method as surrogate value. Surrogate क्या हुआ कि हमने land और value बिल्डिंग की वैल्यू को ऐड कर दिया. That method is also called surrogate method. Or value that you get by doing so, that is called surrogate value. Then value in use. The value of a software property. अब एक चीज आपको याद रखना चाहिए. एक चीज होती है हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज. वो भी डिस्कस करेंगे. हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या है कि ये एक बिल्डिंग है. दिस इज ए बिल्डिंग. दिस इज ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग. ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है लेकिन ये कमर्शियल एरिया में है. इधर भी कमर्शियल शॉप है, इस तरफ भी कमर्शियल शॉप है, इस तरफ भी कमर्शियल शॉप है. अब यहाँ पे बीच में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग. अब इसका यूज क्या हो गया. तो इसकी वैल्यू कम होगी. चाहे ये कमर्शियल एरिया में है लेकिन इसकी यूज की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो उतनी नहीं होगी जितनी इसकी और इसकी. बिकॉज इट इज नॉट हैविंग हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज. इसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कब होता है, जब ये कमर्शियल होती. अब इसका जो यूज है क्योंकि वो रेजिडेंशियल है उसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई. दैट वैल्यू इज कॉल्ड रेजिडेंशियल वैल्यू. सॉरी वैल्यू इन यूज. अदरवाइज होना क्या चाहिए, इसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या कब होगा, जब ये एक कमर्शियल बिल्डिंग होगी. दैट इज कॉल्ड कि उसका जो यूज हो रहा है वो जो पॉसिबल यूज था, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज पॉसिबल था, वो वही है. दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज. दोनों में फर्क पता चल गया. वैल्यू इन यूज और अभी हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे. एज ऑफ नाउ आप समझ लो कि वैल्यू इन यूज क्या है. क्लियर है ये. कोई डाउट है तो पूछ. स्पेकुलेट मोनोपोली वैल्यू. मोनोपोली है क्या कि मान लो एक कोई एरिया है उसमें सारे प्लॉट्स पे बिल्डिंग बनी हुई है. अब एक ही प्लॉट खाली है.
अब वो जो उस प्लॉट का ऑनर होगा उसकी मोनोपोली होगी कि मार्केट का रेट चाहे 10,000 रुपये पर यूनिट है, वो कहेगा कि मैं तो 15 में सेल करूं, क्योंकि और कोई उस एरिया में लैंड अवेलेबल ही नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे केसेस में जो उसको वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली वैल्यू। Fancy value, it is also called a desire value. If the purchaser wants to have a property somehow, since the procurement is an absolute necessity for him due to various reasons, he is ready to pay more sum when compared with others. That is fancy value. तो मेरे को ये साथ वाली प्रॉपर्टी मिलनी ही चाहिए। अब उसकी जरूरत है, वो हाई प्राइस प्रेस कर रहा है, दूसरा आदमी नहीं पे करेगा, तो इन दैट केस दिस टाइप ऑफ वैल्यू, दैट इज कॉल्ड फैंसी वैल्यू। डेप्रिसिएशन हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की डेट में ये समझ लो कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टीयर एंड अदर थिंग्स। जैसे आज आपने कार खरीदी, मान लो आपने 15 लाख की कार खरीदी, तो एक साल बाद क्या होगा, वो कितने की सेल होगी, वो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख की सेल होगी, तो 5 लाख क्या हो गया, 5 लाख। दिस 5 लाख इज डेप्रिसिएशन। We will discuss it in detail. There are different types of depreciation. We will discuss it. Then present value, आज की डेट में जो वैल्यू, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की, that is present value. वैल्यू ऑफ द गोइंग कंसर्न। देखो जब आप कोई सी इंडस्ट्री की वैल्यू करते हैं तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है। एक तो ये है कि प्रॉपर जो इंडस्ट्री है आज की डेट में वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है और इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। दूसरा है कि वो बंद पड़ी है प्रॉपर्टी, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, वो डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी आज की डेट में वो इंडस्ट्री चल रही है, उस वहां से प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो फिर जो वैल्यूएशन आप करोगे दैट इज वैल्यू ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब वहां पे काम चल रहा है, प्रोडक्शन चल रही है और ऑनर को प्रॉफिट आ रहा है, तो उस केस में जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द गोइंग कंसर्न। पब्लिक इंटरेस्ट वैल्यू, पब्लिक इंटरेस्ट वैल्यू जो है वो उन एसेट की जाती है जो पब्लिक यूज के लिए होते हैं। जैसे कोई पार्क है, उसकी आपने वैल्यूएशन निकालनी है, तो दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट वैल्यू। ठीक है ना, दैट इज नॉन इकोनॉमिक यूजेस। देन असेस्ड वैल्यू, जो वैल्यू आपने असेस की, जिसमें आप सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की, दैट इज असेस्ड वैल्यू। सो बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू क्या है, जनरली इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं कि आज आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख की, एक साल के बाद वो उसकी वैल्यू उसमें से डेप्रिसिएशन होकर 9 लाख रह गई, दूसरे साल उसकी वैल्यू 8 साल रह गई, उनके बुक्स में जो वैल्यू है आज की डेट में किसी एसेट की, दैट इज बुक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, it is also called the net present value of all future net cash flows which are foregone by buying a piece of real estate। तो बेसिकली इंटरनेसिक वैल्यू क्या है कि अगर आज आप देखते हो कि अगर कोई प्रॉपर्टी 40 लाख की सेल होगी, मैंने प्रॉपर्टी अभिषेक जी को, मेरा और अभिषेक जी का फैसला हो गया कि मैं 40 लाख में इनको प्रॉपर्टी सेल करूंगा, लेकिन अभिषेक जी कह रहे हैं कि मैं 25 लाख में इसकी सेल डेट रजिस्टर्ड कराऊंगा, 40 लाख में नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब ये जो 40 लाख था वो हो गया आपका एक्चुअल प्राइस, जो रजिस्टर्ड प्राइस है वो 25 लाख है। वो जो एक्चुअल प्राइस था ना 40 लाख, उसको इंटरनेसिक वैल्यू बोलते हैं। और ये 25 लाख है, ये रिकॉर्डेड प्राइस बोल दो, जहाँ एग्रीमेंट वैल्यू जो भी बोलना है उसको बोल। समझ लगी इंटरनेसिक वैल्यू क्या है। तो जो एक्चुअल प्राइस था हम दोनों के बीच में जो हुआ था। अब नोशनल वैल्यू, नोशनल वैल्यू कहाँ पे यूज होनी है,
कि जैसे आपने एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी ब्रदर को देनी है, और उस पे स्टैंप ड्यूटी तो पे होगी ना। तो ट्रांसफर में क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि नहीं, मैंने ये प्रॉपर्टी जो 50 लाख की थी, मैं अपने ब्रदर को 10 लाख में दे रहा हूँ। तो ट्रांसफर डीड में जो है वो स्टैंप ड्यूटी नहीं पे होती। कुछ जैसे हमारे पंजाब में भी, अदर स्टेट ऐसा है या नहीं है वो डिफरेंट इशू है। तो पंजाब में अगर आप ट्रांसफर करते हो ब्लड रिलेशन में अपने ब्रदर को, अपने फादर बेटे को, या मदर बेटे को, जो क्लोज ब्लड रिलेशन में है, तो उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। उसमें एक नोशनल वैल्यू जो है वो डाली जाती है कि इस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। दैट इज कॉल्ड नोशनल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू हमने डिस्कस कर ली। पोटेंशियल वैल्यू, the existing structure on a piece of land may not have exploited the full potentiality of the land. जैसे वही है हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। तो पूरी एक बिल्डिंग थी, एक प्लॉट था, मान लो 1000 स्क्वायर यार्ड का। अब उसमें से 100 स्क्वायर यार्ड में कंस्ट्रक्शन हुई है, 900 स्क्वायर यार्ड खाली है। अब उसमें पोटेंशियल है कि अगर हम 900 स्क्वायर यार्ड में बिल्डिंग बनाएंगे तो कितना हमें प्रॉफिट हो जाएगा। पोटेंशियल है उसमें और एक्सपेंशन की, जहां एफएसआई की वजह से हम एक फ्लोर या दो फ्लोर और बना सकते हैं, उसमें अभी ऑप्शन है। तो वो जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू वही है, दैट इज योर बुक वैल्यू, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू। इन सर्टन बुक वैल्यू एंड रिटर्न डाउन वैल्यू दे आर वन एंड द सेम। सर इन बुक वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस इज एप्लीकेबल और नॉट? क्या बुक वैल्यू में आप ले सकते हो जो जितना आपको कॉस्ट पड़ी है, वो इन आप पे डिपेंड करेगा। सर्कल रेट में तो सर्कल रेट का तो वैल्यू आ जाता है स्टैम्प ड्यूटी का, उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो भी बुक वैल्यू में आती है क्या? नहीं नहीं सर, बुक वैल्यू में तो सब कुछ आएगा। बुक वैल्यू में आपको कितना खर्चा हुआ आज की डेट में, उसके ओके बाद हर साल डेप्रिसिएशन करते जाओगे, वो बुक्स में होगा। वो और कहीं नहीं यूज होगा, आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें ही होगा कंपनी। ओके ओके। तो वो प्रैक्टिकली कहाँ यूज होगा, जब हम इंश्योरेंस वाला करेंगे ना, तो वहां पे होगा कि अगर आप सॉरी, जब आप कैपिटल गेन के लिए करोगे तो वहां पे आप डेप्रिसिएशन, जहाँ बुक वैल्यू में से अगर आप डेप्रिसिएशन लेते रहे हो, तो दोनों में से एक चीज मिलेगी आपको। ओके वो अभी डिस्कस करेंगे जब आप कैपिटल गेन का, वहां पे आपको समझ लग जाएगा कि कहाँ पे आपको फायदा होता है, कहाँ पे नुकसान भी हो सकता है बुक वैल्यू। ओके। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूशन वैल्यू विच यू मस्ट remember as a value. This, this is all for different definitions or basic things which as a value you must understand. Any doubt about these terms which we have discussed? Okay, Sandeep ji, this is all from my side. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. So, friends, this is all for today's syllabus. If you are having any doubt or question, you can unmute yourself and ask immediately before leaving, before Rajendra sir can leave. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं इन द टॉपिक्स related to definitions in valuation as well as purposes of valuation. Sir, hello, sir. Please repeat realizable value of market. हाँ जी, Realizable value of market. रिलाइजेबल मार्केट, रिलाइजेबल वैल्यू कि जो आपने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की है, उसमें से मान लो सेलर ने कोई भी खर्चा किया है उस प्रॉपर्टी को सेल करने से, उससे रिलेटेड जो खर्चे है वो डिडक्ट कर दो।
मान लो प्रॉपर्टी सेलर ने सेल की है 50 लाख, उसने 50,000 रुपया उसने दे दिया कमीशन एजेंट को, और कुछ खर्चे कर दिए। मान लो इसने 1 लाख रुपया खर्चा कर लिया उस प्रॉपर्टी को सेल से रिलेटेड, खर्चा हो गया, तो बाकी उसको कितना मिला? 50 में से 1 लाख निकल गया, 49 लाख मिला। 49 दैट इज lakhs. रियलाइजेबल। Okay, okay, sir. Thank you. Sir, this value of the going concerned is the कोई अभी कोई फैक्ट्री बंद हो गया उसका वैल्यू वो अलग तरीके से करेंगे सर, कोई फैक्ट्री बंद वो रहते अभी आएगा, आगे डिस्कस करेंगे आगे जाके हाँ कि अगर कोई फैक्ट्री चल रही है वो तो आपको पता चल गया कि वैल्यू ऑफ गोइंग कंसर्न है। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? वो डिफरेंट मेथड होगा। Guideline value is nothing but government value, na sir? Yes, sir. Guideline, and it may be, you may call it as collector rate value. Is the difference between the orderly liquidation value and forced liquidation value. Okay. So we have discussed, if you have certain time. Sir, you have pointed out the orderly liquidation value few months. How many months, sir? Up to. So it is reasonable time. No month, no number of months have been mentioned here, but it is generally 2 to 3 months. Okay. Thanks. Yeah, any other doubt?